Hello guys, welcome back to my channel. Today we are start new syllabus of IGNOU. Its subject name is English at the Workplace. It is first lecture. I hope you will gain more language in this lecture. And now today we are start the first unit of this subject. And the name of the unit is profiling oneself for the job. And you can see that the structure of this unit: objectives, warm-up, reading comprehension and vocabulary, listening, speaking, grammar, writing, letters, summaries and answer. And the first is objectives. आप इस चैप्टर में ये बता रहा है कि आप इस चैप्टर में आप कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अचीव कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं अच्छे जॉब, बात करने का तरीका, जॉब पे जाते हैं इंटरव्यूज़ में बात करना होता है, लोगों से कैसे बात करते हैं, अगर आपको जॉब मिल गई है तो एम्प्लॉय से कैसे बात करना है, एंड everything in this chapter. And now we start warm up. Look at this sentence for a conversation between two friends looking for a job. हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दो लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं जॉब को लेकर के. And the two people name of Salman and Amir. Salman said, final year of college is almost getting over and I'm also confused about life. I don't know what kind of job I want. What about you? Amir said, I know that I want a job with a decent salary. मुझे पता है मुझे अच्छी जॉब चाहिए अच्छी सैलरी के साथ. Salman said, but you must be having some job objectives. Amir, my objectives are very simple. I want security of service and an opportunity to do well in life. मेरा जॉब तो पता है मुझे क्या करना है. मेरा जॉब है सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का और मैं इस अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा करूँगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के अच्छी चीज़ें अच्छी काम करूँगा. सलमान बोलता है बट एवरीवन टेल मी one should have long term as well as short term goals. Have you thought about that? लेकिन हर कोई मुझसे कहता है कि व्यक्ति के अच्छी प्राप्त करने के साथ अच्छी जॉब प्राप्त करने के साथ उसका लक्ष्य भी होना चाहिए. क्या आप इसके बारे में सोचते हैं? नाउ enact a role play. One of you takes the role of Salman and the other plays Amir. You may add more lines. अब आप रोल प्ले करें सलमान और आमिर को लेकर के और आप और भी लाइन्स का ऐड करें अपने तरफ से. And now we start reading comprehension. A profile. You must have heard of William H. Gates, chairman of Microsoft Corporation, who is among the world's richest people. Read his profile and answer the question that follow. आपको विलियम्स के बारे में तो पता होगा ना, ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से हैं. आप इनकी प्रोफाइल को नीचे दिए गए हैं और उनके सवालों का जवाब भी दे सकते हैं. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इसी के बारे में बोल रहा है. इनकी प्रोफाइल स्टार्ट होती है यहाँ से. एंड विलियम H. Gates is the principal founder of Microsoft Corporation, the worldwide leader in software service and solutions that help people and business realize their full potential. Microsoft have revenue of US $39.79 billion US dollar का revenue है. Fiscal year ending June 2005 and employ more than 61,000 people in 102 countries and religion. इस पैराग्राफ का मतलब है कि विलियम गेट्स जो हैं वो कॉरपोरेशन के प्रमुख संस्थापक हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं और समाधानों के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं, जो लोगों के व्यवसायों को अपनी पूरी क्षमता के साथ
मदद करना चाहते हैं। जून 2005 में को समाप्त लास्ट में माइक्रोसॉफ्ट का राजस्व जो था उन्होंने 39.79 बिलियन अपनी कमा लिए थे उस टाइम तक। और इनके एम्प्लॉय में और 61,000 एम्प्लॉय इनके अंडर काम करते थे। और 102 कंट्री में माइक्रोसॉफ्ट का सारे ब्रांचेस थे और 61,000 लोग इसमें माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे। कब? 2005 में। मतलब इतने सालों पहले इतने सारे लोग काम करते थे और इतने सारे कंट्री में इनका जो माइक्रोसॉफ्ट था वो सारी ब्रांचेस थी इतने सारे कंट्री में। जैसे कि देख सकते हैं आप उस टाइम इसी वजह से कितने ज़्यादा अमीर होंगे आप सोच सकते हैं। On June 15, 2006, Microsoft announced that effective July 2008, Skill will be moved on out of day-to-day role in the company and spend more time on his global health and education work at the Bill and Melinda Gates Foundation. जो 15 जून 2006 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या अनाउंस किया? 2000 उन्होंने अनाउंस किया कि जो भूमिका जो है वो और बढ़ती जा रही है इस कंपनी को लेकर के। हमें अपने वेबसाइट में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के इन्होंने बहुत सारी हेल्प की थी। आफ्टर जुलाई 2008 जुलाई के बाद माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन थे वो जो चेयरमैन थे बिल गेट्स, उन्होंने बहुत सारे कंपनी में बहुत ही टाइम स्पेंड किया उसको और थोड़ा ऊपर ले जाने के लिए। उन्होंने डे बाय डे में और भी अच्छी चीज़ें उस कंपनी को लेकर के की। और subsequently he took on the post of technology advisor to support the newly appointed CEO सत्य नडेला। इसके बाद जो नई सीईओ थे सत्य नडेला के सहयोग देने के लिए जो भी बिजनेस सलाहकार थे उनसे बहुत सारी चीज़ें समझी कि मैं कैसे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाऊं एंड एवरीथिंग। सत्य नडेला बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके लाइफ में जो बताते थे कि हम कैसे अपनी कंपनी को और भी आगे ले जाएं। और इनके जो बिल गेट्स थे उनके बारे में बताया गया है यहाँ तक। ये ना born on October 28, 1955, Gates grew up and settled with his two sisters. Their father William H. Gates II and settled at Tornado. 28 अक्टूबर 1955 को बिल गेट्स का जो जन्म हुआ ये दो बहनों के साथ सेटल हुए थे। उनके पिता जो थे बिल गेट्स, उनका भी नाम बिल गेट्स था। एक्चुअली ये टाइटल है जैसे आप यूज़ करते हो ना, जैसे तिवारी मिश्रा, ये सब इनका टाइटल था विलियम एच गेट्स। हाँ, तो ये ना अपनी शिक्षा को वॉशिंगटन के रेजिडेंटल में अध्यक्ष थे। इनके पिता इनकी मम्मी देयर लेट मदर मैरी गेट्स वॉज ए स्कूल टीचर। इनकी माता जो है मैरी गेट्स, उनका नाम था, वो स्कूल टीचर थी एट वॉशिंगटन रेजिडेंट जो भी होती है उस स्कूल में वो पढ़ाती थी। गेट्स अटेंडेड पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल एंड प्राइवेट लेक साइड स्कूल। वो ना बिल गेट्स ना अपना बिल गेट्स का एडमिशन एक पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल में हुआ, एक प्राइवेट लेक साइड स्कूल थी। There he discovered his interest in software and began programming computer at the young age of 18. इन्होंने ना 13 ही एज में अपना सॉफ्टवेयर की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाया
और नई नई बेसिक लैंग्वेज बनाई। In 1973, Gates entered Harvard University as a freshman. बिल गेट्स थे ना, उन्होंने ना अपनी यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन की तरह एंटर किया at Harvard University develop a version of programming language basic for the first microcomputer, the MITS Altair। 1973 गेट्स में नए छात्र के रूप में प्रवेश किए। हार्वर्ड में रहते हुए गेट्स के पहले माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर मिट्स अल्टर के लिए जो भी प्रौद्योगिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिक का संस्करण विकसित किया। उन्होंने नई नई जो बेसिक लैंग्वेज है ना वो बनाई। इन दिस जूनियर ईयर गेट्स लेफ्ट हार्वर्ड टू डिवोट his energy to Microsoft। फिर उन्होंने ना जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी उसको छोड़ दिया और इन्होंने अपना एनर्जी माइक्रोसॉफ्ट में लगानी स्टार्ट कर दी। एक कंपनी ही हैड बिगन इन 1975 विथ हिज चाइल्डहुड फ्रेंड पॉली एलेन। इन्होंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ जिसका नाम पॉली एलेन था 1975 में इन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया एंड गाइडेड बाय ए बिलीव दैट द कंप्यूटर वुड बी वैल्यूएबल टूल ऑन एवरी ऑफिस डेस्कटॉप इन एवरी होम। जो कंप्यूटर ऑफिस थे डेस्कटॉप में हर घर में जो बहुत ही ज़रूरी थे, उन्होंने प्रेरित किया उस कंप्यूटर को लेकर के और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें की। The began developing software for personal computer Gates' foresight and his vision for personal computing have been centered to success of Microsoft and software industry। इन्होंने ना गेट्स की दूरदर्शिता और पर्सनल कंप्यूटर के लिए उनका जो भी साइंस था उनकी सफलता के लिए केंद्रीय रहा। मतलब वो बहुत ही प्रेरित हो गए अपनी चीज़ों को लेकर के और अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छी अच्छी नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दिया। सॉरी फॉर इन 1999 में अंडर गेट्स लीडरशिप के अंडर में माइक्रोसॉफ्ट मिशन हैज़ बीन कंटिन्यूअली एडवांस, बहुत ही एडवांस होती गई एंड इम्प्रूव सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते गए एंड टू मेक इट ईजियर मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर इंजॉयबल फॉर द पीपल यूज़ कंप्यूटर। ये क्या किए ना बहुत ही कम पैसे में मतलब और बहुत ही आसानी तरीके से और जो मज़ेदार हो उसको कंप्यूटर ऐसा बना दिया। द कंप्यूटर इज़ कमिटेड टू ए लॉन्ग टर्म व्यू reflected in investment of approximate 6.2 billion on the research and development in 2005 fiscal year। जो 2005 के वित्तीय वर्षों में अनुसंधान और विकास पर लगभग 6.2 बिलियन का खर्च इन्होंने अपनी कंपनी में किया। In 1999, Gates wrote Business at the Speed of Thought, a book that shows how computer technology can solve business problems in fundamentally new ways। और इन्होंने ना 1999 में बुक भी बनाया, बुक लिखा और उसमें क्या था ना कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी उस बुक में और ये बुक बहुत फेमस भी हुआ था। द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 25 लैंग्वेज एंड इज़ अवेलेबल इन मोर देन 60 कंट्रीज। द बुक पब्लिश हुई 25 लैंग्वेज में, 60 कंट्री में ये पब्लिश हुई एंड
Business at the Speed of Thought that received wide critical acclaim and was listed on the bestseller lists of the न्यू यॉर्क टाइम्स। इन्होंने दूसरी बुक जो बुक बनाई थी स्पीड ऑफ थॉट, ये न्यूयॉर्क में बेस्ट सेलर के रूप में न्यूयॉर्क में बेस्ट सेलर के रूप में पब्लिश्ड हुई, जो बहुत ही फेमस हो गई थी। USA Today, The Wall Street Journal and Amazon.com। Amazon.com तो आप जानते ही होंगे, जो बहुत बेस्ट सेलर ऐप है, एंड वहाँ इन्होंने अपने बुक को सेल किया। गेट्स प्रीवियस बुक द रोड अहेड पब्लिश्ड 1995 में, जो बहुत इसके पहले भी एक बुक बनाई थी जिस बुक का नाम था द रोड अहेड, पब्लिश्ड 1995 में। नंबर 1 स्पॉट ऑफ न्यूयॉर्क में ये भी बहुत ही अच्छे बुक पे पब्लिश्ड हुई, बहुत ही फेमस हुई एज अ बेस्ट सेलर लिस्ट फॉर 7 वीक्स। 7 हफ्तों के लिए ये बुक बहुत ही फेमस थी न्यूयॉर्क में। Gates has donated the proceeds of the book to non-profit organizations that support the use of टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। इन्होंने अपना प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं देखा उस बुक को लेकर के, ये बस ना अपनी सिटी को अपनी सिटी को क्या बोलते हैं, अपने वर्ल्ड में ये बहुत ही जगह जगह अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते थे कि आप कैसे कंप्यूटर के तरफ अपना टेक्नोलॉजी को अच्छा डेवलप कर सके। एजुकेशन को लेकर के अपनी बुक लिखी थी, इन्होंने अपनी प्रॉफिट को नहीं देखा। In addition to this, his love of computers and software, Gates founded Corbis, which is developing one of the world's largest resources of visual information and comprehensive digital archive to art and photography for published and private collection around the globe. And philanthropy is the most important to Gates. He and his wife Melinda, इनकी पत्नी का नाम मेलिंडा था, have endowed a foundation with more than 28.8 billion as of January 2005 में to support philanthropy initiatives in the area of global health and learning, with the hope that in the 21st century, advance in these critical areas will be available for all people. इन्होंने डिनोट किया 28.8 बिलियन रुपीस। ये और इनकी पत्नी मेलिंडा ने सोचा अपनी कंट्री को लेकर के इतने पैसे डोनेट किए। गेट्स वॉज मैरिड ऑन Jan 1994 टू मेलिंडा फ्रेंच गेट्स के साथ 1 जनवरी 1994 में इन्होंने अब शादी की। दे हैव 3 चिल्ड्रन, इनके 3 बच्चे हैं। गेट्स इन एन अवाइड रीडर एंड enjoying playing golf and bridge. Thank you. Oh, now this topic is finished. I will upload next lecture. I hope you will understand all sentence. Thank you for watching.